डाइजेस्टिव सिस्टम, आज का क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है. And the first part of digestive system. Okay, so basically these are the nutrients in our food. हमें पता है, right? We have already seen minerals, vitamins, proteins, fat, fiber, water, carbohydrates. These are the nutrients we generally have in our food. Okay, भैया तुमने इसका वीडियो भेजे थे ना ग्रुप पे. I know I had sent the video, but I think आप लोग ने शायद देखा नहीं देखा. So quickly हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. Good job, Shifa. बाकी स्टूडेंट्स क्विकली हम लोग रिवाइज कर देते हैं. ओके, सो वी हैव दी 7 न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. ओके, तो ऑब्वियसली जब हम फूड खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स दिखाई नहीं देते, बट हमारी बॉडी को उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने होते, राइट? सो जब हमारी बॉडी फूड को तोड़ती है, व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड एंड अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, इट इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, हमारी बॉडी क्या करती है? फूड को तोड़ देती है. ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, ओके, या टूटना. Okay, and absorbing nutrients. Absorbing मतलब taking, to take, लेना. Okay, खाने में से nutrients ले लेती अपने इस्तेमाल के लिए. ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं digestion. This is called digestion. So we start off by writing the heading digestive system. Please write the heading digestive system in your book. Once again I'm telling, please write down digestion. Write down what it is. Breaking down of food, and पहले फूड ब्रेक डाउन होता है, एंड अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है या फिर उसको खींच लेती है. दे टेक्स द न्यूट्रिएंट्स एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. प्लीज राइट दिस. रिपीट. वी ईट द फूड. इंजेशन. ओके, डाइजेशन हमारा फूड टूट जाता है, एंड इजेशन वेस्ट हमारे बॉडी में से बाहर निकल आता है. ओके, डोंट नीड टू अगेन राइट और ड्रॉ दिस. आई विल गिव यू अ चांस. Let's go to this. Would anyone like to read? कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, Deeksha, go for it. Digestive system. All parts of the body that help in digestion from the digestive system. Okay, so this is form. This is not from. Okay, ये form है. This means to make. इसका मतलब क्या होता है? बनाना. Okay, to make, कोई भी चीज बनाना. So जो भी बॉडी के पार्ट्स है जो डाइजेशन में मदद करते हैं, उनसे हमें क्या क्या बना देते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं. ओके, दे आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो यू कैन सी द पार्ट्स: माउथ, ईसोफेगस, stomach, liver, pancreas, large intestine, small intestine. These are the parts. Okay, now please write this and draw it. Write it, write the meaning and draw it. Okay, सारी चीजें करनी है. System again. What is digestion? Digestion is breaking down of food, खाना तोड़ना, and absorbing nutrients from the food. Okay, और फिर उसमें से nutrients absorb करना, या body जो ले लेती है nutrients अपने खाने में से. Okay, so that is done by the digestive system. तो ये कौन करता है? Digestive system करता है हमारे body में. So these are the parts of the digestive system. Okay, so first part is mouth. Mouth has tongue, teeth and salivary glands. Tongue तो सबको पता है. Okay, can anyone quickly tell what is tongue? कोई बता सकता है जल्दी से tongue क्या है? What is tongue, students? Anyone? Yes, Shifa, tell me. Ziban. जीभ, right? Like जुबान या जीभ, जो भी बोलते हैं. Alright, teeth, everyone knows दांत. Okay, what is salivary glands? कोई बता सकता है? What are salivary glands? The glands which make saliva. Excellent. Okay, the glands which make saliva. हमारे मुंह में थूक आता है, अगर आप थूक पी जाओ तो और ज्यादा थूक आ जाता है, right? So where does that come from? That comes from the salivary glands. Okay, saliva मतलब थूक, जो थूक होता है. All right, that is called saliva. What else is there? Esophagus. Esophagus is also called food pipe. Okay, so खाना अपने माउथ में से कहाँ जाता है? Esophagus में जाता है. Okay, and then it goes into the stomach. फिर stomach के अंदर चला जाता है. Okay, from the stomach it goes into the small intestine. Stomach के बाद small intestine में जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना esophagus, stomach, stomach के बाद small intestine, small intestine के बाद large intestine. Okay, so you can see that. And दो और parts है. There are two more parts, liver and pancreas. There are two more parts, liver and pancreas. ये सारे parts क्या है, क्या करते हैं, what these parts are, what they do, we will study over this week. ये हफ्ते में हम लोग ये सब देख लेंगे जो भी parts है. But
फॉर नाउ अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट टीथ, राइट? हम लोग सबसे पहले मुंह में खाना रखते हैं तो क्या लगता है उसको? टीथ लगता है हमारे, our teeth touches it, right? When we put food in our mouth. So we study about teeth, okay? And the different types of teeth, and then over this week ये हफ्ते में हम लोग बाकी सारे parts पढ़ लेंगे digestive system के, okay? So let's go to teeth. Would anyone like to read? कोई पढ़ना चाहेगा? Okay, I'll give a chance to Palak. Palak, please read what's in the box. जो box है वो पढ़िए. Teeth. Teeth help us break our food. Adults have 32 teeth. We have 4 types of teeth: incisors, canine, premolar, molar. Excellent. Okay, so teeth हमारा फूड तोड़ने में मदद करते हैं. ब्रेक मतलब तोड़ना. एडल्ट्स मतलब जो बड़े होते हैं, लोग जब बड़े होते हैं, ओके, 18 इयर्स के ऊपर के हो जाते हैं, उनके पास कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं. हाउ मेनी टीथ डू दे हैव? 32 टीथ. ओके, कूल. Yes, Shifa, you want to read this one? Shifa, do you want to read this? Children has 20 teeth, have 20 teeth. They are called milk teeth or primary teeth. They fall off and new teeth grow. The new set of teeth are called Permanent or secondary teeth. secondary teeth. Very good, Shifa. क्या आप समझा सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर? Can you explain this one? Yes. Please go for it. भैया, बच्चों को ना 20 टीथ रहते हैं और दूध के टीथ रहते हैं. वेरी गुड. दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ, है ना? दूध के दांत हम लोग बोलते हैं. डायरेक्ट ट्रांसलेशन मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ. इनका नाम क्या है? मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ. फिर कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या ये एक्सप्लेन कर सकते? मैं भैया, या आपने पढ़ा ना? नहीं आए ना भैया. सोचो ना, पहला पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, इसमें क्या है? They fall off and new teeth grow. मतलब पहले नवे ग्रो टीथ होते. नहीं, दे फॉल ऑफ. किसके बारे में बात हो रही है? दे फॉल ऑफ. दूध के दांत. वेरी गुड. मिल्क टीथ, राइट? मिल्क टीथ फॉल ऑफ. जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं. मिल्क टीथ फॉल ऑफ एंड न्यू टीथ ग्रो. और नए दांत ग्रो होते हैं. ओके, एंड न्यू टीथ ग्रो. द न्यू सेट ऑफ टीथ, जो नए दांत है, न्यू सेट, पूरा नया सेट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड परमानेंट और सेकेंडरी टीथ. परमानेंट मतलब फिक्स्ड. परमानेंट मतलब जो फिक्स्ड है, या फिर सेकेंडरी टीथ. ओके, सो 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. हम लोग देखेंगे ये क्या है, कैसे है, क्यों नाम है इनके, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब देखेंगे. ये 4 टीथ के बारे में, 4 टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में. पहले ये लिख लीजिए प्लीज. राइट दिस इन योर बुक अबाउट टीथ. सो वी रेड अबाउट टीथ एंड नाउ वी सी. भैया 2 मिनट रुको ना. दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट टाइम itself. प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ, राइट? जो मिल्क टीथ होते हैं, आप देख सकते हो उनमें क्या क्या फर्क है. फर्स्टली देयर आर ओनली 20. ऊपर 5, ऊपर 10 है और नीचे 10 है. टोटल 20 है. हियर यू कैन सी देयर आर 3, 6, देयर आर 32, राइट? यहाँ पर 32 है. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीथ. ऑल्सो प्रीमोलार करके एक टाइप ऑफ टीथ है. देयर इज वन टाइप ऑफ टीथ कॉल्ड प्रीमोलार. ओके, विच इज नॉट देयर, जो यहाँ पर नहीं है. ये वाला जो प्रीमोलार है, येलो कलर के दांत, ओके, एक तरह के दांत है, और वो इसमें नहीं है, प्राइमरी टीथ में नहीं है. बट सेकेंडरी टीथ में, मतलब जब हमारे नए दांत आते हैं, दूध के दांत गिर के नए दांत आते हैं, उसमें हमारे पास प्रीमोलार आ जाते हैं. वी हैव प्रीमोलार. सो दीज आर द डिफरेंसेस. यू कैन सी. ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बट आई विल लेट यू टेक अ कॉल. मे बी यू कैन टेक 5 minutes टू ड्रॉ दिस. आप लोग 5 मिनट ड्राइंग कर सकते हो, एंड देन वी विल मूव अहेड. इफ यू वांट टू ड्रॉ, अगर ड्राइंग करना है तो करिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्रॉ. बट हाँ, अच्छा रहेगा इफ यू ड्रॉ इट. अगर आप ड्रॉ करते हो अच्छा रहेगा. लेट्स वेट 5 minutes. First type of teeth are incisor. Okay, so obviously students, before we move ahead, can anyone tell, आप लोग जब खाना तोड़ते हो, okay, जब खाना बाइट करते हो, कहाँ से बाइट करते हो? आगे के दांत से या पीछे के दांत से? पीछे के दांत. जब खाना बाइट करते हैं हम लोग,
when we bite the food? Is it front teeth, right? We bite it from the teeth in front. जब हम लोग खाना तोड़ते और जब हम खाना चबाते, आगे के दांत से चबाते या पीछे के दांत से चबाते? पीछे. Okay. So similarly, आपको खुद ही पता है. So incisor आगे के दांत है. They are the teeth in front, आगे के दांत. Okay. As kids, जब हम बच्चे होते हैं हमारे पास 8 incisors होते हैं. Okay. And जब हम adults होते हैं तभी भी 8 incisors होते हैं. Okay. They have thin and flat edge. They have a thin and flat edge. Incisors are used for cutting food. वो हमें food cut करने में मदद करते हैं. Okay. Thin and flat edge होती है. तो इससे क्या होता है, दांत आगे से फूड हम कट कर सकते हैं. These are incisors. ये ग्रीन कलर के जो है आगे के 4 दांत. ओके. और ऊपर के 4, नीचे के 4, टोटल 8. एडल्ट में भी जब बड़े हो जाते हैं, जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं, सेकेंडरी टीथ आ जाते हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी हैव 8 incisors. Again, we have 8 incisors as kids and 8 incisors as adults. Incisors are thin, patle, and they have a flat edge. Okay, and they use for cutting food. Food cut करने के लिए use होते हैं. Please write down incisors. Next teeth are canines. Next teeth are canines. Okay, we have 4 canines as kids. हाँ, जब हम बच्चे होते हैं तब भी हमारे पास 4 canines होते हैं. And जब बड़े हो जाते हैं, when we become adults, that time also we have 4 canines. So we have 4 canines as adults. Okay, you can see your canines. अगर आप अपने मुंह में हाथ डालते हो तो फर्स्ट 4 टीथ के बाद जो 2 टीथ आते हैं जिनके ऊपर शार्प एज होती है. ओके, canines have a sharp and pointy edge. जो ऐसे पॉइंटी होते हैं. ओके, यू कैन फील इट इन योर माउथ. ऐसा पॉइंटी लगेगा आपको. जो दांत में ऐसा पॉइंटी होता है, उनको क्या नाम दिया गया? उनका नाम दिया गया canines. ओके, सो दे हैव अ शार्प एंड पॉइंटी एज. Canines are used for tearing food. फूड को अगर फाड़ना है, ओके, जो मांस खाते हैं, ओके, या फिर कोई भी ऐसी रबरी चीज जैसे सोया है वो खाते हैं, तो अगर हमें तोड़ना है या फाड़ना है तो उसमें केनाइन काम आते हैं. ओके, दे आर यूजफुल इन दैट. कभी कभार जो फ्रूट होते हैं जो ज्यादा कड़क होते हैं, उनको अगर खींचना है, ओके, सो दैट फिर हम केनाइन. कुरकुरा के पैकेट फोड़ते. यस, करेक्ट. जिससे आप कुरकुरे के पैकेट ऐसे खोलते हो ना दांत में अटका कर, वो कौन से दांत यूज करते हो आप? अपने केनाइन यूज करते हो. यू कैन सी इट हियर. केनाइन जो लाल कलर के है. ओके, और आप अपने मुंह में उसको फील भी कर सकते हो. पॉइंटी पॉइंटी होगा. गुड जॉब मोहिना. प्लीज राइट डाउन अबाउट केनाइन. So the next type of teeth we are going to learn about is premolar. Next type of teeth we are going to learn about is premolar. We have 0 premolars as kids. जब हम बच्चे होते हैं, जब मिल्क टीथ होते हैं हमारे मुंह में या दूध के दांत होते हैं, उसमें 0 प्रीमोलार्स होते हैं. प्रीमोलार नहीं होते. एंड वी हैव 8 प्रीमोलार्स एज एडल्ट्स. बट जब हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ओके, यू कैन सी इन दिस वन, यहाँ पर प्रीमोलार नहीं है. एंड जब परमानेंट टीथ आ गए उसमें प्रीमोलार है. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस 8 आर देयर. 4 ऊपर 4 नीचे. What is the use of premolars? Let's see. Premolars are flat with points and have a flat edge. Okay, चपटे है but उसमें भी point है. चपटे है, flat है, okay, but they still have some pointy edges. Okay, so what does that do? It helps cut our food and move it to the molars for chewing. तो हमारा food अपने मुंह में कट, जो ज्यादा भारी है उसको कट भी कर सकते हैं और फिर पीछे मूव करते हैं, फिर अपने खाने को पीछे धक्का दे देते हैं ताकि प्री जो मोलार है, जो मोलार टीथ है, वो उसको च्यू कर सके, वो उसको चबा सकते. ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ प्रीमोलार. यू कैन फील केनाइन के जस्ट बाद, केनाइन के जस्ट बाद आपको, आप फील कर सकते हो, इट विल बी लिटिल पॉइंटी होंगे बट मोटे होंगे. पॉइंटी होंगे, ओके, ऐसे ऐसे पॉइंटी होंगे. ओके, यू विल सी इट. दिस इज पॉइंटी बट ये मोटे भी है, ये ऐसे मोटे भी है. Okay, you can feel it in your mouth. It's also flat like this, but ये flat भी है. Okay, so these are your premolars. ये आपके premolars. So please write down and draw it in your book. अपने book में लिखिए और draw करिए. दांत है. This is the last type of teeth. These are molars. इनका नाम है molars. Okay, we have 8 molars as kids and 12 molars as adults. जब हम बच्चे होते तब हमारे 8 मोलार्स होते हैं जो मिल्क टीथ है. वी कैन सी 8 मोलार्स ब्लू कलर के, 4 ऊपर 4 नीचे. एंड एडल्ट्स, जब हम बड़े हो जाते हैं, सारे दांत बाहर आ जाते हैं, परमानेंट टीथ व्हेन दे आर ऑल इन योर माउथ, वी हैव
12, 6 on the top, 6 below, 6 ऊपर 6 नीचे. आप देख सकते हो molars. Okay, so you can see this molars. लास्ट के जो दांत है अपने मुंह में आप हाथ डाल सकते हो, एंड द टीथ एट द एंड. ओके, आप उसको फील करो. थोड़े से पॉइंटी, बहुत कम पॉइंटी है बट ज्यादा मोटे हैं. दे आर लिटिल पॉइंटी बट दे आर मोस्टली जस्ट बिग. ओके, वो मोटे हैं. तो दे आर फ्लैट टीथ इन द बैक ऑफ योर माउथ. आपके मुंह के अंदर जो पीछे के जगह पर जो फ्लैट टीथ है, जो चपटे हैं और मोटे हैं, दे आर कॉल्ड molars. They are called molars. You can feel it. अपने माउथ में हैंड डाल के आप चेक कर सकते हो. ओके, molars are used for chewing and grinding the food. हमारे मुंह में जो ज्यादातर chewing का काम करते हैं, चबाना, chew करना मतलब चबाना. ओके, दे आर यूज फॉर chewing and grinding. ग्राइंडिंग, मिक्सर की तरह फूड को एकदम पाउडर बना देते हैं. ओके, फूड को एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में बना देते हैं. किसका काम है ये? Whose work is this? This is the work of the molar teeth. Okay, ये इनका काम है, molars. All right, so please write down molars and please draw this. लिखिए और ड्रॉ करिए. Homework. Take a picture of yourself smiling, trying to show your teeth. आप लोग को सब ई करके स्माइल करना है और आपका फोटो लेना है. और फिर फोटो में, फोटो के अंदर आपके जो भी टीथ है उनके नाम लिखने हैं. Whatever teeth are visible in the photo, you can write their name. So suppose आपने ऐसा फोटो लिया. I'll quickly show you one example. So you took a photo like this. Okay, this is your photo and this is where you are smiling. आप ऐसे स्माइल कर रहे हो. Okay, E, you're doing E and smiling. And this is your eyes. Okay, oh, that was weird. Okay, so whatever teeth you can see, जो फोटो में आपको दांत दिखाई देंगे, क्या सारे दांत दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, बट जो भी दांत आपको दिखाई देते हैं ऐसे, ओके, आप उन पे एक एरो लगा दो. You put one arrow, okay, and you write their name. So suppose you show this teeth, you can write the name here, K9, और इंसाइजर, जो भी दांत है आप उसका नाम लिख सकते हो. कोई कोई बच्चों के पास बीच में दांत होंगे नहीं, आप वो खाली छोड़ सकते हो. सो दिस इज व्हाट योर होमवर्क इज. टेक अ पिक्चर और वो पिक्चर में जो भी दांत दिखाई दे रहे हो उनके नाम लिखो. ऑलराइट, दिस इज अंडरस्टूड.